difficult to get visa on a Pakistani passport for MS in cybersecurity. ठीक है. Hi Junaid bhai, hope you're doing well. I've been following your videos since 2017, especially the ones where you motivate the youth to work hard and focus on their studies. Your words have really inspired me throughout my journey. I just wanted to share a little achievement with you. I started my BScs at Sasej University and completed my degree in 2024. During my first semester, I began working in my field, taking on multiple unpaid internships. I worked 9 to 10 hours a day, 6 days a week, just to gain experience. Alhamdulillah, today I am working as a manager in information security at a well known company in Pakistan. But the biggest achievement that I am so proud to share with you is that I recently discovered and reported a vulnerability in NASA's system. They officially acknowledged it and gave me a token of appreciation, which I am attaching to this email. Interesting. It was a big milestone for me, and I couldn't have come this far without your motivational words. Now, as I'm thinking about pursuing further studies in cybersecurity, my father's friend raised some concerns. He mentioned that cybersecurity may not be good field for visas, especially in countries like US and Europe. My father is really worried now and wants me to consider changing my field. I wanted to reach out to you for some advice, Junaid bhai. Do you think it will be difficult for me to get the visa for a master's in cybersecurity? I really don't want to change my field since this is my passion. I enjoy working long hours, which is 15 to 16 hours a day, when it comes to anything related to computer security. Could you please guide me on whether pursuing a master's in cybersecurity is a good idea? Also, if you have any recommendations on which countries would be the best option for someone with a Pakistani passport, I really appreciate your thoughts. Thank you again for the motivation and the guidance you've given me. You've made a big difference in my life. So ये भाई हैं BScs ससेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और इन्होंने जो है इन्होंने नासा के सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी और उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया और फिर नासा ने उनको एक्नॉलेज किया और उसका एक लेटर भी भेजा जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले उनका एक सवाल है कि अब जब आप एक तरफ नासा का आप काम कर रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ आपको क्यों मसला होगा साइबर सिक्योरिटी पे वीज़ा मिलने का। और ये अगेन मुझे समझ नहीं आता कि किस अथॉरिटी से अब्बू के दोस्त बताते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। या तो वो खुद साइबर सिक्योरिटी में रहे हो या उनका कोई जानने वाला रहा हो जिसके साथ ये हुआ हो। अगेन एक आदमी का एक्सपीरियंस डजंट डिटर्मिन कि सबके साथ ऐसा ही होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं तो फिर क्या। और सिर्फ एक चीज़ में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट लेते हो टू द पॉइंट कि आपने नासा को करेक्ट किया है, दूसरी तरफ आप फील्ड छोड़ दोगे कि वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे कौन करता है भाई। तो ये मैं दूसरे लोग जो सुन रहे हैं बेसिकली उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज एक अंकल ने बोला वीज़ा नहीं मिलेगा, दिस दिस ओनली वन वे टू फाइंड आउट, राइट। तो आप खुद ट्राई करें और खुद ही आपका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। वो बेहतर बता सकता है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, जैसे कि आपने कहा कि जी नासा ने एक्नॉलेजमेंट दी है और आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढी। एक तरफ आप वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको वीज़ा ना मिलने का खदशा है। अभी आपने दो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। एक तो ये कि आप किसी पर कोई जूम कॉल में हो और उसमें buckcrowd.com/NASA-VDP हॉल ऑफ फेम ये है, ठीक है। अच्छा ये मुझे इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं लेटर पे। अभी आपने मुझे लेटर की भेजी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको रूकी मिस्टेक बताता हूँ ये क्या है। देखिए ये लेटर जो आपने बेटा मुझे भेजा है ये जाली लेटर है और ये आपने खुद बनाया है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल आउट है, ठीक है। ये बेसिक मैं यही तो कहता हूँ। अभी एक डेंटिस्ट साहिबा की एक ईमेल मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने सोचा वो लूँ लेकिन वो इतनी खिचड़ी पकाई हुई थी और वो यूरोप के एक मुल्क में डेंटिस्ट्री कर रही हैं और उनका ईमेल लिखने का स्टाइल ये था। यही मैं आपको कहता हूँ हमारे लोगों को ना फॉर्मेटिंग नहीं समझ आती। फॉर्मेट कैसे करना है, लिखना कैसे है। दुनिया तो बाद में कब्जा करेंगे या दुनिया पे बाद में चढ़ाई करेंगे या फतह करेंगे, पहले ईमेल लिखना तो सीख लें। अब आपने बेटा ये जो मुझे नासा का भेजा है ना, ये डियर जो है ना, डियर देखें कितना आउट है और फिर आगे नीचे पैराग्राफ कितने पीछे हैं। यहीं से मैंने पकड़ लिया कि लेटर फेक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि
पॉलिसी वीड लाइक टू रिकग्नाइज। अच्छा, कभी भी जो है ना कंट्रैक्शन वर्ड्स फॉर्मल लेटर में यूज नहीं होते। ये जो दूसरी लाइन में ना, वीड लाइक टू रिकग्नाइज योर एफर्ट्स, नो, वी वुड लाइक टू रिकग्नाइज योर एफर्ट्स होता है। फॉर्मल लेटर में कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन कहते हैं जब दो लफ्जों को जोड़ दिया जाए अपोस्ट्रोफी के साथ। वी और वुड को वीड, ये आप जो चैट पे लिखते हो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट। तो भाई चैट जीपीटी से लिखवा लेते, वो ज़्यादा आपको अच्छा लिख के और फॉर्मेट करके देता। अगेन साइबर सिक्योरिटी के आदमी हो, चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल कर रहे, दूसरी गलती ये है, ठीक है। As an independent security researcher, both in identifying the vulnerability you submitted and for following NASA's VDP policy and guidelines in responsibly reporting this to us. Okay. The ability to detect and report on security vulnerabilities is a valuable skill in the information security industry. Your reporting has facilitated NASA's awareness of otherwise unknown vulnerabilities and help। बहुत vulnerability बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार नहीं होता। Protect the integrity and availability of NASA information है, NASA's information होता है, NASA information क्या होता है। Please accept this letter as a token of our appreciation for your efforts in detecting this vulnerability and better enabling NASA, इंग्लिश इतनी गलत है बेटा इसकी, to continue its advances in science, technology, aeronautics and space exploration to enhance knowledge, education, innovation, economic vitality and stewardship of the earth. We are all in this together as a security community and your participation and expertise is commended। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जुनेद भाई जिसने लेटर लिखा है उससे भी तो गलती हो सकती है ना फॉर्मेटिंग की, या वी वुड लाइक ही कंट्रैक्शंस की। समझ आता है ह्यूमन एरर हो सकता है, हालांकि इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी बड़े, जब आप इतने बड़े इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप ये बच्चों वाली मिस्टेक्स, ये ग्रेड 2 की मिस्टेक्स आप नहीं करते। नाउ सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है, जो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है ना बेटा इसमें, वो ये है कि सिंसियरली के बाद जिसका सिग्नेचर है ना उसका नाम नहीं लिखा हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होता, जो भी सिग्नेटरी होता है उसका नीचे नाम लिखा होता है और नीचे उसकी डेजिग्नेशन लिखी है, सीनियर एजेंसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, नासा ऑफिसर वगैरह 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 उसने लिखा हुआ है, ठीक है। मगर उस बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता। मुझे एक जब मैं मशहूर हो गया था तो किसी ने चाहा था कि वो मुझे एम्प्लॉय कर लें, ठीक है, और शेडी मामला लग रहे थे मुझे वहाँ पे। तो चूँकि मेरी बीवी की सारी ज़िंदगी एचआर में गुजरी है, मैं उनको साथ लेके गया था, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखा दें आप, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया ना एक सैम्पल के तौर पे, उसमें यही था रॉन्ग नंबर सबसे बड़ा, कि सिग्नेटरी का नाम नहीं लिखा हुआ था, बस यूं बना हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऐसा कहीं नहीं होता भाई, क्या डेजिग्नेशन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, हायरिंग मैनेजर है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब कल को मैंने पकड़ना हो तो मेरे पास ये लकीरें हैं और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और वहाँ पे 60 बंदा बैठा हुआ है, तो किसको पकड़ूंगा मैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी वो होती हैं। तो मेरी नज़र में दिस इज़ अ फेक लेटर दैट यू हैव क्रिएटेड। जिस तरह जाकिर नाइक के इवेंट में एक बंदा ये बोल के कि मेरी बारी आ जाए, अपने आप को क्रिश्चियन बोला और आगे आगे। आई थिंक यू हैव कंकॉक्टेड दिस स्टोरी ताकि आपकी ईमेल फीचर हो जाए किसी तरह, या फिर मे बी यू आर गेटिंग किक्स आउट ऑफ इट एंड यू आर लिविंग इन सम फूल्स पैराडाइज। ये जो आपने दूसरी इमेज शेयर की है, इसमें भी साफ लग रहा है कि ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ है bugcrowd.com, ये अलग ब्राइट हुआ हुआ है, और आगे जो नासा वीडीपी लिखा, हॉल ऑफ फेम लिखा हुआ है, वो बुझा हुआ है, राइट, और वो चुपका हुआ लग रहा है कहीं से। और इसी तरह जो देखिए, कुड ऑल्सो बी स्क्रीनशॉट ऑफ अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ स्क्रीनशॉट जब सिचुएशन होती है, तो ये इसमें इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत वीक है। और बैड, अच्छा, नासा नासा क्या वो हो रहा है, और बैड बॉय हर्ष बैठा हुआ है ना उस पे, और द नूब बीस्ट हर्ष भी बैठा हुआ है। अच्छा, दो हर्ष आ गए उनके पास, नूब बीस्ट भी आ गया, बैड बॉय भी आ गया। अच्छा, विवेक आ गया, ठीक है, बग 777 आ गया, वासिफ आ गया, प्रेस्टो हैरी वटेवर आ गया। आप गालिबन लूसीफर 7704 है, तो लूसीफेरियन हरकत आपने एक ही है। सो सॉरी टू से बेटा, बट आई डोंट बाय इट। आई रियली होप दिस इज़ ट्रू। अगर ट्रू है तो नासा से जाके मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है, और जिनका ये साइन है उनको भी साथ खड़ा कर लेना, तो मान लूँगा मैं।
अदरवाइज फॉर्मेटिंग इसकी बिल्कुल आउट है। तो ये मैं जो फ्यूचर फिक्स्टर्स हैं तो उनके लिए एक लेसन है, फॉर्मेटिंग ठीक हो, कंट्रैक्शंस ना हो और सिग्नेटरी का नाम हो। नाम आपने बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नाम, हालांकि यू कुड हैव इजीली फेक्ड इट, कितना मुश्किल है लिंक्डइन पे ढूंढना कि नासा में फलाना डिपार्टमेंट कौन हेड कर रहा है, बट नकल के लिए अकल चाहिए होती है। सो ऑरा नेगेटिव 25,000 आपका हो गया इस पे, और आई डोंट बाय दिस एंड प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स। आप BS CS अगर कर रहे हो, उम्र में बड़े हो, और अगर आप अपने आप को मेरा ट्रू फैन कहते हो और आप कहते हो कि मुझसे बहुत कुछ सीखा है, तो आई एम रियली सैड टू सी कि अगर आपने ये चीज़ें सीखी हैं मुझसे, सो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन माई इंटेग्रिटी एज वेल। सो या आई डोंट बाय इट बेटा एट ऑल। मुझे फेक लगा। जो लोग देख रहे हैं आप भी ज़रा कमेंट में बताएं, डू यू बाय दिस लेटर या नहीं। चलो खैर, अपना ख्याल रखो एंड आई विश यू वेल इन लाइफ and I hope you get more and more serious about your career and stop listening to uncle if the uncle exists as well. Take care. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।